So we have introduced ourselves with what's happening in India when the Britishers are arriving. और हमने उसका इकोनॉमिक साइड देखा. आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि हम इकोनॉमिक साइड पे ज़्यादा ध्यान देंगे. So then the Britishers come. In the hindsight, when we look at when the Britishers जब वो आए उन्होंने क्या किया, there are different ways of looking at it. Of course people are going to disagree about things, right? That's what happens in this world, and that's probably the beauty of it as well. So we need to begin our conversation by understanding that there are huge differences among scholars, and then they will remain there, but we would be able to find कुछ ना कुछ हमको मिल ही जाता है ना कॉमन थ्रेड हिस्ट्री में कि ये चीज़ें तो चलो हुई, चलो डिसएग्रीमेंट है, पर ये थोड़ी कह रहा है कोई कि ब्रिटिशर्स नेवर केम टू इंडिया. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है. ऑफन टाइम्स द डिसएग्रीमेंट्स इन हिस्ट्री पीपल स्टार्ट डिनाइंग हिस्ट्री. इसकी सबसे अच्छी कैजुअलिटी तो क्रिश्चियन क्राइस्ट है, हज़रत ईसा का तस्वुर. The lot of people, they would say the Gospels disagree on Jesus. there are all of these problems with the narrative of Jesus, but that doesn't mean Jesus didn't exist. And this kind of methodology is used by a lot of people who are not aware of scientific method etc. तो वो ये करते हैं, ये historical method I mean, तो उनसे ये गलती हो जाती है अक्सर. So don't fall into that pitfall. जनरल जो हिस्ट्री का रंग है वो उसको अडॉप्ट करना चाहिए. फिर जब आप एक्सपर्ट बने then of course you can take positions. That's okay, but you should know what it means to accept or deny things. Now here as well sharp differences exist, and more so between the nationalist side and then the Western scholars. And then comes the third element as well, because we know another country came out of this land, Pakistan. So there would be then the Pakistan historians as well. So the murkier things get much more murky. So we would have the Western scholars saying one kind of history, and then there would be the nationalist historians, they would be saying another kind of history, and then there would be nationalist में से थोड़ा सा अलग होकर Pakistani historians, and they would tell their history. And where does the truth lie? That's up for you to decide. वो आप पढ़ के देख लेंगे where is the truth. And हम इस वक्त we want to see कि what is the general trend जो बात की जाती है, and more so from the जैसे as history is taught in India. Western writers के हिसाब से the British rule provided political unity and stability to governance in India. इनके हिसाब से ब्रिटिश ने हिंदुस्तान को केओस से बाहर निकाला और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी हिंदुस्तान को. अब इस बात में कितनी हकीकत है क्या नहीं है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास इल्म हो हिंदुस्तान के पास्ट का. कि हम तभी तो कह सकते हैं कि अगर हमको पता होगा मिडीवल में बेड़ा गर्क है, एंशेंट में बेड़ा गर्क है, मॉडर्न में बिल्कुल सब अच्छा है, देन ऑफ कोर्स बात सही है. लेकिन अगर हमको ये पता चले कि अभी बेड़ा गर्क है, पास्ट मिडीवल में अच्छा था, एंशेंट में अच्छा था, देन वी कैन से झूठ है. या मिडीवल में भी अच्छा था, एंशेंट में भी अच्छा था, आपके पास भी अच्छा है, देन वी वुड से कि ऐसी बात नहीं है जो आप कह रहे हैं. सो दीज थिंग्स रिक्वायर कॉम्पेरेटिव एनालिसिस एंड डीप अवेयरनेस ऑफ एटलीस्ट द हिंदू कल्चर कि कैसी थी हिंदूज़ की हिस्ट्री. सो मॉरिस इज़ एन अमेरिकन स्कॉलर. ये ऑब्जर्व करते हैं कि डिस्पाइट ए हिंदू ट्रेडिशन ऑफ इम्पीरियल एक्सपेंशन, हिंदूज़ के पास एक कंसेप्ट था एक्सपैंड होने का, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी भी एक लार्ज रीजन एक स्टेबल पॉलिटिकल यूनिट बन के नहीं उभरा 100 साल के लिए या 150 साल के लिए. अब इस बात में कितनी हकीकत है? इस बात में काफ़ी हकीकत है, क्योंकि ये जो एलिमेंट इन्होंने 100 साल का इसमें लगा दिया, 150 साल का, दिस होल्ड्स ट्रू. देयर हैव बीन बिग एम्पायर्स, जैसे अशोक्स एम्पायर वाज बिग, देन औरंगजेब्स एम्पायर वाज वेरी बिग. औरंगजेब के टाइम पे मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स zenith in terms of territory acquired. But
they did not last forever because the people died and after them the empires disintegrated. But Mughal Empire by and large highly stable, large part of India, so you would have to take it with a grain of salt as well. कि इसमें कितना फैक्चुअल है, क्योंकि है स्टेबल एम्पायर्स भी हैं. गुप्ता एम्पायर वाज ठीक ठाक स्टेबल, बट मुगल एम्पायर इन पर्टिकुलर हाईली स्टेबल फ्रॉम एटलीस्ट अकबर्स रेन to Aurangzeb's reign. So, in fact, if an empire lasts as long, that in itself is a sign of its stability. स्टेबल नहीं होगा तो नहीं रहेगा ज़्यादा टाइम. अब आपके एरा में भी अगर सरकार स्टेबल नहीं है तो रिमूव हो जाती है, पॉलिटी स्टेबल नहीं है तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है. सो कोएलिशन गवर्नमेंट्स ब्रेक, स्टेबल सरकार नहीं है. And then he says there was nothing that compares with the imperial chronologies of Rome, Egypt or China. A crucial consequence is that no tradition of continuous administrative institutions and no persistent bureaucracy ever developed. This is very harsh. Indian political unity was a myth. ये एक abstract concept है which was concretized into a reality by British rulers. These are really tough questions. They cannot be brushed aside. ये इसको ऐसे ही रिजेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कोई आउटसाइडर बोल रहा है. These are good questions and this is a debate कि when did this Indianness emerge? When we say for example कि हम past में ऐसे थे, हम, what does this हम refer to? Who is हम? And there can be debates on this. ये हम कौन होता है? Does this hum include caste divisions? Hum refers to hum Brahman या hum Vaishya or hum Shudra. Does this hum refer to north south both? तो ये सारे सवाल, religious divide and all of these things, तो it has to be talked about. वही ना वो category of thought of Indianness कब emerge होता है, ये category of thought कहाँ से आते, तो इस पे बहसें रही हैं and scholars have been highly divided. So he says कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट था, ये बस ऐसी बातें थी हवा में, लेकिन ये कभी कंक्रीट नहीं बना. In the absence of political unity, 18th century India में there were very low levels of commerce and capital accumulation. बड़ा कम था जब, क्योंकि political unity ही नहीं थी इनके हिसाब से. अच्छा, there is one more thing. When the Britishers came in India, this is definitely true for that time. हम बहस कर सकते हैं मुगल्स के टाइम पे, हम बहस कर सकते हैं गुप्तास के टाइम पे, अशोक के टाइम पे. But when the Britishers are arriving, this is definitely true. There are a lot of polities, lot of fighting going on. Nizam versus Marathas versus Mysore versus Travancore versus northern Sarkars. Everyone is fighting everywhere. A lot of fighting going on in India. Highly fragmented society, and in that is also an insight. There is another period when similar thing is happening. Before Delhi Sultanate, there are all of these people fighting against each other. So what does that tell you about history? It tells you very interesting thing. इसके लिए कश्मीरी मुहावरा भी है, वो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वो स्टोरी तो आपने सुनी होगी. वो दो बिल्लियाँ लड़ रही होती है, एक बंदर आ जाता है उनका मसला हल करने के लिए, तो ज़्यादा फिर वो खुद ही रख लेता है. So when there is infighting happening, outsider comes and takes it, वो उसका फ़ायदा उठाता है. So broken polities. ये अब देखो मंगोलों ने हमला किया अलाउद्दीन के टाइम पे, तो लॉट ऑफ स्टेबिलिटी वाज गिवन बाय ए स्टेबल दिल्ली सल्तनत. तो ये सारी चीज़ें हुई हैं हिस्ट्री में. नाउ if this is the case, commerce and capital accumulation is very less, then Britishers had to deal with such a bad economy. हम क्या देख रहे हैं, हम वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, उनके हिस्टोरियंस क्या कह रहे हैं. ये जो आर्ग्यूमेंट है ऑफ द वेस्टर्न राइटर्स, दिस चैलेंजेस द नेशनलिस्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ इंडिया विच वी टॉक्ड अबाउट, कि हिंदुस्तान की इकॉनमी वाज ग्रेट, इट वाज वेरी अट्रैक्टिव एंड इट वाज प्रॉफिटेबल फॉर द ब्रिटिश. नाउ हु इज राइट देन? वी वोंट जज अभी, हम अभी फैसला नहीं लेंगे. आप पर्सनली अगर ले भी चुके हैं, बट फॉर द सेक ऑफ दिस सीरीज वी आर नॉट गोइंग टू टेक ए डिसीजन. We are going to see, look at things so that we learn how to maintain objectivity.
तो हम किसी का साइड अभी नहीं, हम साइंस की साइड से हैं, ठीक। हम देखेंगे वक्त के साथ के क्या थॉट्स हमारे अंदर उभरते हैं। सो फॉर नाउ ही इज आर्ग्यूइंग। अच्छा, वेस्ट भी कोई होमोजीनस नहीं है, ये भी याद रखेगा, क्योंकि हिस्टोरियोग्राफी में, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में भी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। जब इंडियन हिस्टोरियंस स्टार्टेड गेटिंग स्ट्रॉन्गर, तो इट पुट प्रेशर ऑन द वेस्टर्न हिस्टोरियंस एज वेल, तो दे हैड टू रिवाइज देयर हिस्ट्री, एंड देयर इमर्ज्ड एज अनदर स्कूल विच इज़ कॉल्ड कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस, जिन्होंने थोड़ा टोन डाउन किया। अच्छा चलो, ये चीज़ें अच्छी थी बट ये वाली चीज़ें तो बुरी थी। तो there is that revision of history that keeps on taking place, and then there is also subaltern perspectives and other perspectives of history, feminist perspectives of history, जो पहले नहीं होते थे अब हैं, तो हमको वो वाली बात भी करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें याद रखा करें कि हिस्ट्री changes its how it reveals what was happening. Second, वेस्टर्न राइटर्स कहते हैं कि अगर आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री को देखें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बड़ी कम थी, क्योंकि यहाँ का जो एग्रीकल्चर था ये नॉन एनिमल पावर्ड एग्रीकल्चर था, तो कोई ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी नहीं थी। बड़े सारे वेस्टर्न हिस्टोरियंस का मानना है द एब्सेंस ऑफ एनी वर्थवाइल टेक्नोलॉजी मेंट कि प्रोडक्टिविटी बड़ा कम थी, और जब टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी दैट मीन्स लॉट ऑफ लैंड वॉज अनक्लेम्ड, वर्जिन लैंड एज लेट एज 1800s। ये जो हम वेस्टर्न व्यूज़ देख रहे हैं, आई कैन अश्योर यू ये वेस्टर्न व्यूज़ एक्चुअली आर कॉलोनियल व्यूज़। ये ज़्यादा कॉलोनियल हिस्टोरियंस ऐसे लिखते थे हिस्ट्री हिंदुस्तान की। एक थियरी है जिसको कहते हैं वाइट मैन्स बर्डन वाली थियरी। ये वाइट मैन्स बर्डन था, ये पूरी दुनिया गवारों से भरी है, हम अंग्रेज़ हम हैं बस जो हैं, तो हम अब हमारे ऊपर ये बर्डन है पूरी दुनिया को सिविलाइज करने का। ये थॉट इट प्रिवेल्ड फॉर मोस्ट ऑफ वेस्टर्न जो पैराडाइम थी ना एजुकेशन की या एकेडेमिया की, स्कॉलरली सर्कल्स में यही पैराडाइम रहा है फॉर मोस्ट ऑफ देयर हिस्ट्री, एकेडमिक हिस्ट्री यही रहा है। और मोर सो आफ्टर रेनेसांस कि हमारे पास ये है वो है, तुम्हारे पास क्या है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते थे हमारे पास माँ है, एंड दे वुड बी लाइक डूड हमारे पास भी है, तो काइंड ऑफ वी लॉस्ट इट देयर। बट this thought was finally challenged by a new school emerging single-handedly. You know, a lot of people underestimate themselves. People think that कि मतलब sorry क्या कैसा मी थी का सुबह का सा sorry क्या कारण and all, and then उसमें then they fail to see कि one person cannot do much. तो ये दो कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट्स होते हैं। एक अंदर चाहत होती है कि मैं ही सब कुछ कर लूँ, मेरे सामने ही सब कुछ हो, और दूसरा फिर होता है लेकिन ये बहुत द एनॉर्मिटी ऑफ टास्क इज़ लाइक कि मैं अकेले कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं छोटी सी इतनी सी ये, मैं एक छोटा सा कॉर्नर पे बैठा हुआ एक इंसान हूँ, मैं क्या करूँ। बट यू नो पैराडाइम शिफ्ट्स सिंगल हैंडेडली लोगों ने किए हैं हिस्ट्री में। Paradigm shifts, huge, humongous things. You never know with this world. And in this line as well, जो हम अभी बात कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा काम अदा किया इन्होंने, एडवर्ड सईद ने। Single-handedly he took on almost 600 years of Western history. क्या कह रहे हो तुम? What? Pause. रुको, सब्र करो. And then he writes this Orientalism, and there's huge debate in academia, West में, and then the cards start falling, and new way of looking at Orient emerges. So don't underestimate yourself, but then don't overestimate as well. वो दूसरा साइड ना, वो भी इशू है, पता होनी चाहिए अपनी सेल्फ वर्थ का जितना एक्यूरेट एस्टिमेट हो उतना बेहतर। तो इसको कश्मीरी में हम कहते हैं पन्नन परमानन उनके सिले मासूम बराबर। You should know that. So they used to look at rest of the world as an uncivilized world, and you are uncivilized, you need to be civilized. We'd show you Western ways of doing things and all of those things.
तो इस वजह से देयर इज अ रीज़न टू बिलीव दैट द काइंड ऑफ हिस्ट्री दे आर राइटिंग would be prejudiced. And now from a Muslim perspective, as Muslims have for long argued that their portrayal in Western history has been biased. If that is true, I don't see a reason why we cannot say at the same time that their portrayal of Hindus, Africans, Chinese or other civilizations for that matter, I don't know why should we say that that would be accurate. If the Muslims are not willing to say that their representation of Muslims is accurate, I don't see a reason why they should say that at least a priori. ये इसकी possibility logically है कि they can be wrong about Muslims but right about Hindus. Possibility है. But once you concede कि they are not right about Muslims, then you have to take the possibility into consideration that they can be wrong about Hindus as well. ये चीज़ बड़ा important है समझना. बाइसेस से दूर रहना आसान नहीं है, और जो आपसे कहता है कि बाइसेस से दूर रहो 100%, वो आपसे कह रहा है कि इंसान रहना छोड़ दो. Stop being human. Because you cannot remain. वही ना वो that donkey, two haystacks, how would he choose one then? So finally the blick has to come in. But if we are all biased, तब हम इन मसाइल का हल कैसे करेंगे? We have talked about the solution. Maintain objectivity as much as you can, but then there would still be some biases. Apply those biases everywhere. हर जगह अप्लाई करें उस बायस को, तो वो बायस का इफेक्ट एलिमिनेट होगा. So if you want to say that मुझे नहीं समझता कोई, तब फिर आप इसको भी कंसीड करें, जो आपका वो अब्यूजिव फ्रेंड है उसको भी शायद लोग नहीं समझते. ठीक, इस पॉसिबिलिटी को एंटरटेन किया करें, तो ये बड़ी मदद करेगा. डू दीज टू थिंग्स एंड थिंग्स वुड बी गुड. अच्छा, ये हजरत फर्दर आर्ग्यू करते हैं हिंदुस्तान में टोबैको, पोटैटो, पीनट, ये सब हमने इंट्रोड्यूस किया. फिर ये कहते हैं कि इंडियंस कैन नॉट क्लेम एनी ग्रेट अचीवमेंट्स इन मैन्युफैक्चरिंग. वाई? तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो कहाँ से भारत महान? कोई महानता नहीं थी टेक्नोलॉजी में आपके यहाँ. तो होता महान तो दिखता हमको. तो ये चीज़ भी है. यू लैक टेक्नोलॉजी, दे आर्ग्यू. ये कहते कि हिंदुस्तान में एक्सीलेंट क्राफ्ट्समैन थे. दे प्रोड्यूस ग्रेट टेक्सटाइल्स. There were few other manufactured goods as well, but they were the result of hard work, not of technology. मेहनत का काम है, ये समझ रहे हैं हम, लेकिन ये टेक का काम नहीं है. आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी. और इसके लिए एविडेंस 17th सेंचुरी जो रिकॉर्ड्स हैं इंग्लिश के, दे पॉइंट आउट दिस inelasticity ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्टिविटी इन इंडिया. Inelasticity of productivity is a general term in economics. Inelasticity जब आप इकोनॉमिक्स में कहीं पे भी टर्म देखेंगे ना, ये क्या कहते हैं उसको, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड वंस अगेन, टेक्निकल टर्म. इकोनॉमिक्स में टेक्निकल टर्म है inelasticity, तो यूज़ होता है. सो inelasticity of textile productivity, it could be inelasticity of anything other as well. So when is it used, inelasticity? It is used when, अच्छा पहले तो फिजिक्स में कहाँ पे यूज़ होता है inelastic? Anyone having any clue? Inelastic हम उसके लिए यूज़ करते हैं जिस पे फोर्स अप्लाई करेंगे लेकिन वो डिफॉर्म नहीं होगा. तो when it does not show any response to the force that we are applying, so we say inelastic. तो inelastic of textile productivity would be that it's not responding to the changes that are happening around. Now when we say inelasticity of textile productivity, that means textile productivity लचक नहीं दिखा रहे हैं, ये बढ़ नहीं रहे हैं. जब डिमांड बढ़ रही है ये उतना ही है, तब भी मार्केट में डिमांड 1000 शर्ट्स की है, आप 100 प्रोड्यूस कर रहे हैं. मार्केट में डिमांड 10,000 शर्ट्स की है, आप तब भी 100 ही प्रोड्यूस कर रहे हैं. तब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आप 100 ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. और वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेशन.
क्या दिखाते हो? टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेशन, क्योंकि आपको टेक को बढ़ाना पड़ेगा तभी आप वो ज़्यादा दिखा सकते हैं. अब इनने आर्ग्यू क्या किया? वेस्टर्न हिस्टोरियन ने आर्ग्यू किया टेक आपके पास था नहीं, रिकॉर्ड्स हमको दिखाते हैं कि इनइलास्टिक है प्रोडक्टिविटी. आवर पॉइंट इज प्रूवन. W.H. मोरलैंड एंड मेनी अदर स्कॉलर्स, उन्होंने अर्ली यूरोपियन ट्रैवलर्स का जो लिखा है उसको यूज़ किया है टू प्रूव इंडियन टेक वाज पुअर. और इस एविडेंस पे बेस्ड मॉरिस कहते हैं द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ए रीजन इन विच पर कैपिटा इनकम वॉज रिलेटिवली लो इन द सेंचुरीज बिफोर 1800. तो बड़े बुरे हालात थे. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी नहीं, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बड़ी कम थी, इनसिग्निफिकेंट कॉमर्स था, और नो अदर कंक्लूजन इज सपोर्टेबल बाय द एविडेंस दैट कम्स फ्रॉम द एरिया. मॉरिस, मोरलैंड और बाकी यूरोपियन ट्रैवलर्स, ब्रिटिश फैक्ट्री रिकॉर्ड्स, they accepted that India was underdeveloped जब ब्रिटिश ग्रेजुअली यहाँ पे आए. Then the implication would be कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इंडिया का बेनिफिशियल था, बेनिफिशियल फॉर इंडिया, इट वाज गुड फॉर इंडिया. हिस्ट्री में जब दो सोसाइटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, जब दो सोसाइटीज़ इंटरेक्ट करती हैं, जो एडवांस सोसाइटी होगी, जो ऑर्गेनाइज सोसाइटी होगी, इट सक्सीड्स इन एस्टैब्लिशिंग इट्स कंट्रोल ओवर द लेस एडवांस सोसाइटी. और लेस एडवांस सोसाइटी इट्स इन ऑ ऑफ द मोर एडवांस सोसाइटी एंड इट गेन्स फ्रॉम देयर जो भी वो एडवांस्ड है, इट गेन्स फ्रॉम दैट देयर टेक, देयर ऑर्गेनाइजेशन. अब इसको आप इकोनॉमिक्स में तो बड़े अच्छे से समझते हैं. व्हेन फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट इन योर कंट्री, दे ब्रिंग विद देम देयर टेक, देयर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. और इसीलिए फिर जब आप से फॉर एग्जांपल आप IBM में जॉब कर रहे हैं, आप गूगल में जॉब कर रहे हैं, एंड यू लीव दीज कंपनीज एंड यू स्टार्ट वर्किंग इन ऐसे हिंदुस्तानी कंपनी, नेपाली कंपनी, पाकिस्तानी कंपनी, दे वांट टू हायर यू. Why? Because you bring with yourself their culture, their work culture, their work ethic. If that is true for एक छोटी सी company, एक छोटा सा फर्द, how much would it be for nations as a whole when one nation is colonizing another? It will bring with it its अपनी सारी चीज़ें वो साथ लाएगा, and the local people would be in its awe, and they would be inculcating in themselves lot of their ideals as well. So this is the basic premise जिस पे वेस्टर्न राइटर्स भी लिख रहे हैं, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को एडवांस मानते हैं कि ये एडवांस सोसाइटी एक अंडर डेवलप्ड सोसाइटी पे राज कर रही है और इससे फ़ायदा ही होना है. अंडर डेवलप्ड सोसाइटी इससे बेनिफिट होगी, एंड दे एन्यूमरेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल यूनिटी, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, डेवलपमेंट ऑफ रेल नेटवर्क. ऑल ऑफ दीज हैड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. इरिगेशन डेवलप किया, पब्लिक वर्क्स, अदर्स. इसमें पंजाब वाले खित्ते में बड़ा डेवलप किया इन्होंने इरिगेशन. और IIT रूरकी जो है यूज्ड टू बी वन ऑफ देयर इंस्टीट्यूशंस फॉर सिविल इंजीनियरिंग, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. मैन्युफैक्चरिंग ग्रो, कॉमर्स ग्रो ऑन द मॉडर्न लाइन्स बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट दे वर डूइंग. So to sum up this discussion, Western writers के दो points है regarding the impact of Britishers on India. पहला कि जिस वक्त colonial expansion हो रहा था, ब्रिटिश के सामने जो हिंदुस्तान है ये बड़े बुरे हालात में है. इसकी ये अंडर डेवलप्ड है, लो प्रोडक्टिविटी है, लो पर कैपिटा इनकम है, टेक्नोलॉजी है नहीं, टूल्स पर मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, यहाँ पे बड़े बुरे हालात है. दूसरा, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी बेनिवोलेंट है, अच्छी है, खूबसूरत है, हिंदुस्तानियों के फेवर में है, हिंदुस्तानियों का उससे फ़ायदा ही हुआ. उनको पॉलिटिकल यूनिटी दी, उनको एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दिया, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाद में हिंदुस्तान में हुई उसका ग्राउंड वर्क कर दिया. ऐसा ब्रिटिश साइड आर्ग्यू कर रहा है. तो व्हाट्स द नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू? इसके खिलाफ उसी वक्त में लोग आर्ग्यू करना शुरू हो चुके थे जब हिस्टोरियंस ये लिख रहे थे. उसी टाइम शुरू हो गया हिंदुस्तान का रेस्पॉन्स भी. दादा भाई नौरोजी, रोमेश चंद्र दत्त ये 1800s में लिख रहे हैं, RP दत्त ये 20th सेंचुरी में, एंड दीज आर सम ऑफ द
पायनियरिंग नेम्स ऑफ इंडियन नेशनल साइड, जो उनका साइड बता रहे हैं. तो मुस्लिम्स में फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी बड़े सारे लोगों ने लिखा है उस टाइम पे, बड़े सारे लोगों ने लिखा है रेस्पॉन्डिंग टू रिलीजियस लाइंस पे जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे. तो बहुत सारे लोगों ने, आई वुडंट नेम देम बट लॉट ऑफ पीपल आर राइटिंग. द क्वेश्चन दे रेज वाज व्हाई डिड ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी गेट इन्वॉल्व इन इंडिया देन, अगर इतने बुरे हालात हैं. आप यहाँ आए ही किस लिए? ठीक, हमने तो नहीं बुलाया इसलिए. ठीक, अब आए हैं तो काम भी बताए. तो आप तो कह रहे हैं कि हम रो रहे हैं, बड़े बुरे हालात हैं, कि आप यहाँ तब आए क्यों? और फिर लोकल वॉर्स में आपने क्यों पार्टिसिपेट किया? वाई आर यू डूइंग दैट? वाई डिड द ब्रिटिश क्वीन इन 1858 टेक द डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग ओवर इंडिया, जब इतना बुरा हाल है यहाँ पे हर चीज़ का? हाउ वॉज इट दैट व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी केम, इट केम विद पीनट्स, इसके पास कोई पैसे नहीं थे, एंड इट वेंट ऑन टू मेक फॉर्च्यून्स. एक एम्प्लॉय जो आपका यहाँ आता था खाने के लिए, उसके पास होता नहीं था, मरासमस का शिकार होता था, वो माल न्यूट्रिशन से मरने वाला होता था, फैट बेली लेकर वापस जाता था. कैसे? हाउ? ये सवाल पूछते हैं. आपकी वोकैबुलरी में बाबू टर्म आया कहाँ से? यू यूज्ड टू कॉल देम नबॉब्स, द नबॉब्स, द पीपल हु यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम इंडिया इन इंग्लैंड. ये करप्शन चार्जेस पे आपने कैसे काफ़ी सारे लोगों को ये किया? यू ट्राइड देम. करप्शन तो तब होगा जब पैसे हैं, पैसे ही नहीं है, करप्शन कैसे होगा? इफ देयर इज़ नो मनी इन इंडिया दैट दे वर साइफनिंग. मैं आपको सच बात बताऊं, जितना मेरा अपना पर्सनल नज़रिया है, द ब्रिटिश केस, ब्रिटिश हिस्टोरियंस वेर हाईली प्रेजुडिशियल, जॉन्डिस्ड, डिजीज्ड, हाईएस्ट डिग्री तक डिजीज्ड, हाईएस्ट डिग्री तक डिसीज. बड़ा बुरा उन्होंने हिस्ट्री लिखा है, बड़ा बुरा हिस्ट्री लिखा है उन्होंने, मुस्लिम्स के साथ भी और हिंदूज के साथ भी. they would do it. The arguments from the Indian national historians, they are irrefutable. उसका कोई जवाब ही नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये हकीकत पे बेस्ड है. वो क्या करते थे, हिंदुस्तान में आके यहाँ इतना पैसा कमाते थे, फिर वहाँ पे सीधे दिखता था कि भाई ये कहाँ जा रहे हैं, ये कौन सी जगह है जहाँ ये जाते, और वापस वो अलादीन का वो जो गुफा थी, वहाँ से वो निकाल के जीनी को रब करके वो बता देता है, और वो तथास्तु एंड प्रकट हो जाता है दौलत सारा अचानक से. Everyone they come to India, they go back rich. So the argument is, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ट्रेडिंग कैपिटल ऑफ 68,000 pounds, ये where did the fortunes come from? ये इतनी बड़ी कंपनी बनी, one of the biggest world has ever seen. How? Where? When? Why? If the Indian economy was this stagnant, how did your company sustain itself in India? उसने अपना एक्सपेंडिचर लाया कहाँ से, अगर यहाँ पे कोई पैसे थे नहीं? ये काउंटर आर्ग्यूमेंट में दो आर्ग्यूमेंट्स बड़े स्ट्रांग देते हैं जिनको हमें समझना है. पहला ड्रेन थियरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, और दूसरा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. इसका मॉडर्न प्रोपोनेंट इज शशि थरूर. अगर आपने शशि थरूर का वो रेपरेशंस वाले वो वीडियोस देखे होंगे जो बड़े मशहूर हुए, ही गॉट वायरल बिकॉज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही डिलीवर्ड अ लेक्चर, एंड ही हैज़ रिटन द एरा ऑफ डार्कनेस समथिंग, ऐसे किताब का नाम है उनकी, ब्रिटिश, जो विच क्रिएटेड ह्यूज नॉइज इन द वेस्ट, इन पर्टिकुलर इन ब्रिटेन. So he says that we missed the bus to industrialization because you threw us under the bus. ये उनके words हैं. खैर, that's also interesting. But then you would understand that he is only refining the arguments the earliest people developed. जो पहले दिनों पे arguments थे, he is developing them. और ये चीज़ को भी understand करना बहुत important है. With all due respect to Mr. Shashi Tharoor, he is a knowledgeable man. And compared to us, highly knowledgeable. But one of the things that a lot of people are awed by when people speak to them, they are awed by, oh my God, इसको सब पता, बस तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, यही है अब सब कुछ. This is happening with lot of है, और ये extremist circles में सबसे ज़्यादा होता है कि कोई भी इंसान 4 argument chapter number verse number करे तो all of a sudden everyone feels
when जब सोसाइटीज़ में इल्म बड़ा नायाब होता है ना, फिर किसी के पास 2 दाने भी इल्म के होते हैं, he appears to be, oh my god, यही है बस, and then this idiots की फौज फॉलो करती है, और and people really think oh my god ये कितना जीनियस है, सुपर डुपर ऑसम, जबकि थोड़ा सा भी जिसको इल्म होता है उसको पता होती है कि कितनी ओरिजिनलिटी है इंसान के बात में, उसकी डेप्थ दिखी जाती है. तो there are seriously such people around. Millions and millions of people follow them because of their academic acumen, and I can assure you that ढंग का इल्म रखने वाला है 6-year-old can defeat them. 6-year-old. मैं ये पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ. Don't want to name people because don't want to antagonize etc. But what I want to tell you through this is कि all that glitters is not gold. इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए. This doesn't apply to Shashi Tharoor. He is a knowledgeable person. But I got a chance to explain the thing that I wanted to do. I did. And oftentimes, I'll give you an example. You would be hearing a lot of arguments, say for example, Quran की textual history पे, textual compilation etc. उस पे आप सुनते होगे debates etc. तो ये बहुत सारी वेबसाइट्स पे कुरान का टेक्स्ट इज़ नॉट प्रिजर्व्ड, कुरान का टेक्स्ट इज़ नॉट प्रिजर्व्ड. एनीवन जो थोड़ा सा भी एक्वेंटेड है विद हिस्ट्री ऑफ कुरानिक टेक्स्ट, he or she would be able to tell you nothing new has been said for last 200 years. Nothing. All the new evidence is supporting the Muslim side of this story. Every new evidence that comes support. तो वो क्या आर्गुमेंट कर, आप कोई आता है उठता है किसी नई इस्लामोफोबिक कंट्री से और वो बोलता है व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस, वो कहाँ से ला रहा होता है वो आर्ग्यूमेंट्स. अब उसकी खुद की कौम के लिए वो वाह इसने ये सब कुछ पढ़ लिया है, ओ ही डेवास्टेट्स देम, ही हैज आर्ग्यूमेंट्स, ही हैज दिस. बीन देयर डन दैट ड्यूड. ये क्रिश्चियन मिशनरीज के आर्ग्यूमेंट्स 200 साल पुराने जो वेस्टर्न साइड में ख़त्म हो चुके हैं. इसका एक कुरान कॉम्पिलेशन बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है. इब्न वरक ने ओरिजिन्स ऑफ कुरान एंड देन ऑल ऑफ दीज पीपल रोट ऑल ऑफ दीज बुक्स. वेयर आर दे गेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन? दे आर डूइंग सम न्यू रिसर्च? ऑफ कोर्स नॉट. They are quoting this Jamal Quran by John Gilchrist etc. the likes. But where is Jamal Quran? Did he do some research? They are copy pasting these Arthur Jeffries and Alphonse Mengana's shots. There was that another person who wrote the sources of Islam. What was his name? Testal. And these arguments against Islam, are they writing anything new? They are not. They are quoting Mizanul Haq. So there's nothing new happening on that front. Absolutely nothing new. And where are they getting their information? Arthur Jeffrey was a scholar. He was Orientalist था वो, तो prejudiced eye के साथ देखता था इस्लाम को, but he still would do some work. But he gets all of his information from Kitab al-Mashaikh, Abu Dawood. He would get his information from Al-Itqan fil Ulum al-Quran by Suyuti, Sarakshi, all of these people, Burhan they would quote, and that's what they would do. So but we are unaware. People are unaware. When people are unaware, they are awed by it. Oh my God, भाई क्या भाई ने अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा. ये कोई बड़ी बातें नहीं है. Nothing new, nothing substantial, nothing substantial. The groundbreaking work, I would say, groundbreaking in the sense not that it was some amazing, super duper awesome work. It was new. That was Christopher Luxemburg's Syriac origins of Quran, or Patricia Crone's conception of revisionist, or Fred Donner's revisionist of early Islamic history. But most of that is not accepted by academia. In fact, Christopher Luxemburg's thesis gone. Patricia Crone then later revised her arguments,
The point here is that all that glitters is not gold. You should really develop academic acumen. आपको खुद academic acumen develop करना चाहिए. और this kind of acts as a filter. You would be able to filter between. Never ever think if they have written 700 pages की किताब तो they are doing something awesome. आजकल के ज़माने में किताब लिखना कोई बड़ी बात नहीं है. कोई बड़ी बात नहीं है, कसम से. कोई बड़ा मसला नहीं है. तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करें कि डेवलप एकेडमिक एक्यूमेन एंड you would be able to save yourself from all of this. The drain theory and deindustrialization theory. Drain of wealth theory जो formulate की, it referred to the process of draining of wealth from India. एक significant portion हिंदुस्तान की national wealth का it was siphoned off and exported to England, और इंग्लैंड की tall इमारतें इनके हिसाब से इसी wealth से बनी. And India got no economic returns for all of this contribution according to them. इनका कहना है कि इंडिया paid an indirect tribute to English nation. गुलामी कर रहा था ये जो drain of wealth हिंदुस्तान से हुआ इंग्लैंड की तरफ, this was in the form of salaries to British officers posted in India. These were charges, the profits made on the British capital invested in India, all of these things. And these benefited the English and diminished the sources of investment in India. अमिया बागची 1930s की हस्ती हैं, 1930s में पैदा हुए थे और अभी हैं शायद अमिया बागची. तो अमिया बागची says, since after acquiring dominion over India, East India Company and private traders could appropriate Indian goods or tribute or profits without really paying for them. अब क्या हो रहा है? अब आपका कब्जा है यहाँ पे, तो आप क्या कर रहे हैं? You can appropriate Indian goods as tax, तो you are not paying for them. फिर आप उसको बाहर ले जा रहे हो और फिर बेच रहे हैं and you are earning on it. तो आपने क्या किया? आपने एक तरीके से यहाँ के आर्टिजन से चोरी करके वो चीज़ ली और बाहर उसको बेचा है. प्रॉफिट आपका दुगना फ़ायदा. आपको कुछ नहीं कर रहा है और चीज़ बेच के आपको फ़ायदा हो रहा है. Britain did not any longer have to send bullions to India to balance her accounts. अभी बैलेंस ऑफ अकाउंट्स फिर से वही वो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स की बात हो रही है. ये बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री का इल्म भी बड़ा ज़रूरी है. हमने बात की थी मर्केंटाइल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स की. उसमें क्या होता था? द फिलोसॉफी वाज इकोनॉमिक फिलॉसफी इस टाइम की थी, एंड दिस इज बिफोर एडम स्मिथ हैज़ हैपेंड. अभी एडम स्मिथ नहीं हुए हैं. द आइडिया वाज जिसके पास जितनी वेल्थ है, जिसके पास जितना गोल्ड है, वो उतना स्ट्रांग होगा. ओके, अगर ये प्रेमाइज है, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड कैसे होगा? आपके यहाँ आपकी करेंसी है, पाउंड है फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ रुपी है. आप अपने पाउंड लेकर यहाँ आएंगे, मैं क्या करूँगा? उसका अचार डालूंगा. मेरे किसी काम का है नहीं पाउंड आपका, तो मुझे उस करेंसी में दे जो मेरे यहाँ काम करे. लेकिन आपके पास रुपी है नहीं, तो आप क्या करें? वी विल हैव टू डिवाइस अ मेथड. सो यूजुअली द मेथड वुड बी गोल्ड. देन दिस सेंटेंस विच वी यूज्ड अर्लियर वुड मीन के वी वुड हैव टू स्टोर गोल्ड. जिसके पास जितना गोल्ड होगा वो कंट्री उतनी स्ट्रांग होगी. हम बात कर रहे हैं मर्केंटलिस्ट. इसका पैरेलल क्या चल रहा है जब ये काम हो रहा है जो अमिया बागची कह रहे हैं. तो अब हमको गोल्ड प्रिजर्व करना है. ठीक, समझ आ रही है बात हमको. हमें गोल्ड कंज्यूम कहाँ पे हो रहा है? जब हम ट्रेड करते हैं हमें उनको पे करना पड़ रहा है गोल्ड में. ओके, हमें गोल्ड अर्न कहाँ से हो रहा है? जब वो हमारे साथ ट्रेड करते हैं, दे पे अस इन गोल्ड. तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम उनसे इंपोर्ट कम करें, उनको एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, तो हमारे पास ज़्यादा गोल्ड होगा. ठीक, ये एक तरीका है. या उसके लिए आपको डेवलप होना पड़ेगा. दूसरा तरीका ये नहीं हो सकता कि हम कोई तरीका निकालें जिससे हमारे पास रुपीज़ आए और फिर हम रुपीज़ वालों को रुपीज़ से पे करें, तो हमें गोल्ड उनको देना नहीं पड़ेगा, हमारा गोल्ड वहाँ जाएगा नहीं. और जो फिर हमने वहाँ से लिया, इफ़ वी सेल दैट आउट एल्सवेयर वी वुड बी अर्निंग गोल्ड, सो वी वुड हैव मोर गोल्ड, वी वुड बी स्पेंडिंग लेस गोल्ड. तो फ़ायदा ही फ़ायदा. लेकिन अब इंडियन रुपी लाएंगे कहाँ से?
वेयर वुड यू गेट इंडियन रुपी फ्रॉम? वो तो इंडिया में है, आप तो ब्रिटिशर हैं। तो अगर कोई ऐसा तरीका हम निकाल लें कि हम भी इंडियन रुपी प्रोड्यूस कर सके, ये कैसे हो सकता है? आप हिंदुस्तान में कंपनी की तरह है, रुपीज़ हिंदुस्तान के लोगों के पास है। हम कोई ऐसा तरीका निकालते हैं कि हम हिंदुस्तानी लोगों को टैक्स करें, दे वुड पे अस टैक्सेस इन रुपीज़, हम ये रुपीज़ को इस्तेमाल करके उनसे चीज़ें खरीदेंगे, वो चीज़ें हम बाहर ले जाएंगे। ओके, आप लोगों को टैक्स कैसे कर पाएंगे? यू वुड हैव टू गेट राइट्स ऑफ टैक्सेशन। हाउ वुड यू गेट देम? आइदर बाय अ ट्रीटी विद द किंग कि हमें भी टैक्स लेने दो, और रिमूव द किंग। ठीक, दीवानी राइट्स कहते हैं इनको, दीवानी राइट्स इनने एक्वायर कर ली थी। तो अब क्या हुआ? अभी बैठे बैठे यहीं से पैसा कमा रहे हैं, फ्री में बैठ के टैक्सेस ले रहे हैं और उन्हीं टैक्सेस को यहीं पे यूज़ कर रहे हैं। हाउ डिड ऑल ऑफ दिस हैपन एंड व्हाट डू नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस से? वी वुड सी इन द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह।